and welcome to For All Prep. So in this series of algebra, we are continuing with the logarithm. So previously we have already did the questions from 2017 and 18. In the previous session in the session number 3, we tried to cover around 7 questions, but one question was remaining from CAT 2018. So we will try to do that first and then continue on with the other questions from 2019 and so on up till 2025. So let's begin. So today we have a session number 4 in the log series, logarithms in algebra. So the question is you have to find out the value of, it is given that log base 12 81 is equals to p. Then you have to find the value of, 3 times 4 minus p upon 4 plus p. अब इसकी value we have to find out. So what we can do is uh, we can just try to, this is p. So we have to somehow simplify first p. So simplify p. So for simplifying p, you can say that this is 81 is 3 to the power 4. And if we can do something like this, if 1 upon p is equals to 1 upon log of 12 base 81. Oh, sorry, log base 12 81. So what we can do is we can write this as log base 81 12. Uh, and reason for doing this is because 81 is 3 to the power 4. So what we can do is we can take 1 by 4 out from here, and we will have remaining of this thing. Okay, so if you try to do 4 over p, then its value will be log of 312 base 312. Okay, then what you can see, like we have to create expression something like this in the question itself. So we have to find out the value of 3 times 4 minus p 4 plus p. So what we can do is we can try to divide the whole equation by p, denominator and numerator both. So we will be having 4 upon p, this one, and we already have the value of 4 by p here. So what we can do is we can directly substitute this value. So अब देखो, if we substitute, so we will have 3 12 minus 1 and log base 3 12 plus 1. Then you can say that we can simplify this also further, because this is what? This is 3 times 4, and log of m times n is log of m and n, and this is what? 1. This is what? 1, and this is log base 3 4. And if you try to put this value, so 1 will get cancelled, and this will be log 3 4, and over here in the base we will be having log base 3 4 plus 2. Okay, so यहाँ तक को आ गया है समझ में हो. अब इसके आगे देखते हैं कैसे. इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला जो चीज़ है लिखी वो कुछ ऐसी हो जाए. ये लिखिए 2 की जगह में लिख दिया log बेस 3 की पावर 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 आ जाएगा. अब आप देखो जब बेस सेम है, log a प्लस log b इज log a b, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 4 टाइम्स 2 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स 3 स्क्वायर. आप देखो ये लिखा हुआ है क्या? log बेस 3, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 4, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर. तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा log बेस 3 6. ठीक है,
अब नीचे इन डिनोमिनेटर इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, जो कि 2 टाइम्स है, लॉग बेस 3 पे 6 है, तो आप देखो इस पे आइडेंटिटी अब एक और लग रही है। वो आइडेंटिटी कौन सी है कि log of if we have a base of something like this, we can write it log b by log a, और जो भी चाहे हम बेस ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी बेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है बेस हट जाएगा और वो आ जाएगा, ये यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3/2 टाइम्स log ऑफ 6 के बेस पे 4। ठीक है, 6 के बेस पे 4। अब 6 के बेस पे 4 आ गया। अब यहाँ पे जो 3/2 पावर आ रही है बाहर अपने पास, वो हम चाहें तो अंदर भेज सकते हैं। अंदर कैसे भेज सकते हैं देखते हैं। ये पावर हम पूरी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब लिख देंगे तो आ जाएगा 4 टू द पावर ऑफ 3, 4 टू पावर ऑफ 3/2। अब हम चाहें तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 टाइम्स 4, 3 टू द पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 जो कि आ जाएगा 8। तो अपना आंसर अपने दिख जाएगा वहाँ पे ऑप्शंस में, log बेस 6 पे 8। मे भी बताने में बड़ा दिख रहा है पर काफी आसान है। तो हमने पहले क्या किया है एक बार देखने के लिए, तो ये दे रखा था p, फिर हमने ट्राई फाइंड आउट किया है कि भाई p जो है सिंपली कैसे लिख सकते हैं, तो p को सिंपली ऐसे लिख दिया। ठीक है, और थोड़ा सा देखा कि अगर 4/p का एक यहाँ पे दिख रहा है कि 4/p, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4/p जो है वो ये दिख रहा है, ये चीज 4/p वाली। 4/p अगर ये अपने दिख रही है यहाँ पे, 4/p ये दे रखा है इतना। अब ये जब इतना दे रखा है तो हमने देखा कि ये चीज क्या बन पा रही है वहां पे एक्सप्रेशन में जो पूछा जा रहा है, तो वहां पे बना के देख ली तो ये बन जा रही है। अब सिमिलरली बस वहां पे उसकी वैल्यू रख दी जो भी यहाँ पे आ रही थी 4/p की, हर जगह लिख दी। अब फिर तो ये सिंपली वही है कि log a प्लस log b, log a b, log और log, वही चीज मतलब बार बार लग रही है। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा तो ये बच जाएगा, सिमिलरली नीचे आ जाएगा ये। फिर इसको देखा कि 2 कैसे हटा सकते हैं, तो इस सेम के बेस पे मतलब 3 के बेस पे 3 स्क्वायर 2 वाली होती है, तो ये लिख दिया। फिर वही log ए भी लगा दिया। अब फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो बस सिंप्लीफिकेशन चलता जा रहा है। आप काफी फास्ट इसको कर सकते हो जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, log बेस 6 पे 8। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अब 2019 के हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। तो हम लोग क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन कैट 2020 के। वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा सारी क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जब क्वाड्रेटिक अपना हो जाएगा उसके बाद। तो आप देखो कि ये दे रखा है कि एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में कि log बेस 4/5 इज इक्वल टू log 4y। ठीक है, फिर 4 लिखा है, 4 लिखा है log बेस 4y टाइम्स दे रखा है log बेस 6 रूट 5, देन y पूछा है कितना होगा y। अब आप देखो इस सब क्वेश्चन में एक चीज बस वही लग रही है, बेस चेंज वाला हम अगर देखें कि इसको हम लिख सकते थे log 5 बाई log कितना लिखा है 4 लिखा है, और इसको लिख सकते थे log y डिवाइड बाई log 4, और इसको लिख सकते हैं log रूट 5 डिवाइड बाई log 6। ये आपको याद आ गया होगा कि log ऑफ ए बी को लिख सकते हैं log b बाई log a। ठीक है, बस वो यहाँ पे अब कैंसिल ही करना है। 4 से 4 कट गया, देखो आप 4 से 4 कट गया। अब क्या हो रहा है इसमें कि अपने को y पता करना है, y पता करना है। तो बाकी सबको अब देखो ध्यान से, ये जो लिखा है, ये जो पावर हाफ है 5 के पे वो बाहर आ जाएगी, और ये बाहर ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। इसको यहाँ से हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। और सिमिलरली ये आ जाएगा log 6, और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होके log y बन जाएगा। अब आप देखो 2 को हम यहाँ भेज सकते हैं 6 के ऊपर, तो x पावर पे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा जो कि 36, ये log बेस 36 हो जाएगा। तो ये रखा है log y, तो y कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन आया था टी टर्म में, मतलब टाइप इन द आंसर वाले में, तो इसका आंसर 36 है। ठीक है, चलो ये सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 2020 वाले हम देख रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोल रखा है, ये काफी सिंपल है ये वाला भी। इसमें लिखा है 2 4 8 इंटू 16, ये भी टीटा में आया हुआ है, TITA, टाइप इन द आंसर वाला। ठीक है, और तो डिवाइड बाई बोल रखा log बेस 2 4 स्क्वायर।
और ये दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, इसकी पावर में क्यूब लगा रखा है, मतलब होल पे पूरा क्यूब लगा रखा है। और ये, ठीक है, ये दे रखा। अब आप ये थोड़ा ये जान लो कि लॉग बेस मान लो 2 पे कुछ भी दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर और लॉग बेस 3 का स्क्वायर दोनों अलग अलग चीजें। इसका मतलब ये दो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग 3 2, ऐसे 2 3। और इसका मतलब है लॉग बेस 2 3 मल्टीप्लाई में हम लिख रहे हैं लॉग बेस 2 3, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। ये मतलब ए इंटू ए का होल स्क्वायर लिखा है। और यहाँ पे जो बेस नहीं, जो यहाँ पे नंबर है अपना 3, उसके पे स्क्वायर लगा हुआ, तो ये बाहर आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों अलग अलग चीजें। तो ये इसका पूछ रखा है वैल्यू कितनी होगी, तो जरा देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप अगर ढंग से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर नंबर जो लिखे हैं लिखे रहे हैं, तो अगर नीचे वालों को हम सिंप्लीफाई कर लें तो, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएंगे, वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि पावर कितनी लिखी है, 2 की पावर 2 लिखी है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 खुद बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली लॉग बेस 4 लिखा है, 4 कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और ये 2 की पावर क्यूब होता है, 3 बाहर आ जाएगा, 2 डिवाइड सॉरी 3 बाहर आ जाएगा, हाँ, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, और इसका क्यूब लिखा है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, ये कितना लिखा है, 2 की पावर 4 लिखा है, 2 की पावर 4 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, और ये पावर 4 आ जाएगा। क्या समझ गए होगे? ये वाला हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हर जगह। प्रॉपर्टी सिंपल सी ये है कि लॉग बेस, मान लो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये पावर एक्स लिखी है, वाई लिखी है, तो एक्स ऐसे बाहर आएगा और वाई वाला ऐसे बाहर आता है, लॉग बेस ए, ये ऐसे लिखते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले सेशन में, ठीक है, वही सब प्रॉपर्टी बार बार लग रही है। तो अब इसकी वैल्यू मान लो फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते थे, 4 4 देखो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, ये नीचे 3 की पावर 1 पावर बचेगी, वो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 8 टाइम्स 16। और ये आ जाएगा कितना, 2 की पावर क्यूब लिखी है यहाँ पे डिवाइड में, और ये 4 टू पावर 4 लिखी है, 4 टू पावर 4 लिखी है, और ये 2 की पावर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर क्यूब आ गया, ये बेसिकली 8 लिखा है ये। और 4 टू पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 लिखा है। आप चाहो तो ऐसे लिख, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो इसको कि भाई 4 4 इंटू 4 ऐसा है। तो आप चाहो तो ऐसा है कि 4 4 4 4 16, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 4 16, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा अपना, 24 आंसर आ जाएगा, 8 टाइम्स 24। एक क्वेश्चन ये आया था। सब क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 20 20 वाले कैट के पेपर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपसे पूछ रखा है इसमें, आपको बताना है कि 2 टू द पावर बोल रखा है वाई स्क्वायर लॉग बेस 3 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर लॉग 2 2 के बेस पे 3 देन वाई बोल रखा कितना होगा। ऑप्शंस अपने पास हैं, लॉग बेस 2 1/5, लॉग बेस 2 1/3, लॉग बेस 2 1/5, लॉग बेस 2 1/3, ये ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस में दे रखा है, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन में से बताना है। अब आप कुछ ऐसा देखना कि भाई ऐसा कुछ यहाँ लॉग वॉग लेते हैं ताकि ये सब बाहर आ जाए, ठीक है, ये सब बाहर आ जाए। वो ऐसा कुछ लेते हैं कि, अब देखो हर जगह अपने ऑप्शन में log बेस 2 दिख रहा है, तो अपने को log बेस 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो टेक log ऑन बोथ साइड्स एट बेस 2 के पे ले लो, तो ये 2 के बेस पे लोगे कैंसिल हो जाएगा, log बेस 2 2 1 हो जाएगा, और सिमिलरली ये सब बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। log बेस 2 पे लोगे तो log 2 5 आ जाएगा, ये जो जो भी लिखा है वो सब बाहर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक चीज ये लिखी, एक ही लिखी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप ढंग से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ देखते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। आप चाहो तो इसको इसे लिख सकते हो log 5/log 3, ठीक है, वो मतलब सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, और ये लिखा है log 5/log 2। सिमिलरली ये लिखा है log 3/log 2, ठीक है, log 2/log। अब देखो log 5 कट गया, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, वाई स्क्वायर आ जाएगा log 3/log 2। अब ढंग से देखो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा,
ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, स्क्वायर बन जाएगा दोनों का। तो ये आ जाएगा log, ढंग से देखो, यहाँ पे बेस लगा दिया 2 और यहाँ लग दिया 3, तो ये बता दिया स्क्वायर है। अब बोल रखा है, अब आप ढंग से देखो भाई, ए स्क्वायर अगर दे रखा है बी स्क्वायर की, ठीक है, तो दो तरीके हैं, तो या तो ए बराबर हो बी के, या तो प्लस माइनस बी के बराबर हो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर माइनस बी का स्क्वायर लिखते तो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ प्लस माइनस आ सकता है कुल मिला के, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि सिमिलरली तो y चूंकि निगेटिव नंबर है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस में log ऑफ 2 3। अगर पॉजिटिव नंबर होता तो हम लिखते log बेस 2 3, अगर पॉजिटिव होता, पर बोल रखा है नेगेटिव है तो ये लिख देंगे। अब क्योंकि नेगेटिव है, अब देखो आप -1 की पावर आप ऊपर भेज दो, क्योंकि या फिर देख लो अगर ऑप्शन अपने को मिल जाए ऐसा, तो ऐसा ऑप्शन देखो मिल नहीं रहा, सेम ऑप्शन, तो हमने क्या किया, -1 की पावर ऊपर भेज दी। और वहां ही क्यों भेजी, यहाँ क्यों नहीं भेजी बेस वाले में, इसलिए नहीं भेजी क्योंकि 1/2 भी बेस में कहीं नहीं दिख रहा, 1/2 में बेस में नहीं दिख रहा। तो ऊपर जब भेजेंगे तो आ जाएगा log बेस 2, और ये कितना आ जाएगा, 3 to the power -1, ये 1/3 आ जाएगा। अब दाम देखो, तो ये आ जाएगा log बेस 2 1/3, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो आपको अपने को सेकंड वाला ऑप्शन दिख जाएगा फिर, है नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला। चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टफ नहीं है, बस इसमें एक चीज पता होनी चाहिए थी कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखा तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो सकता है, बस ये पता होना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी सब 2020 वाला ही है, और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, मे बी मुझे क्वाड्रेटिक की बात करवाना चाहिए था, पर फिर भी एक बार ट्राई करते हैं करने का, हो सकता यहाँ पे आ जाए, फिर क्वाड्रेटिक में एक बार फिर देख लेंगे। ये दे रखा है -b, ठीक है, और इसमें बोल रखा है कि log बेस 2a इज इक्वल टू 1/3। देन वैल्यू पूछ रखी है आपसे log बेस 3a, अपने पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ही हैं। पहला ऑप्शन है 2/a+b-3, सॉरी यहाँ पे -3 पूरे में है, मतलब डिनोमिनेटर में लिख रखा है इसे। और फिर अगला ऑप्शन है 2/a+b, और एक -3 यहाँ अलग से लिख रखा है। फिर लिखा है a+b/2 - 3। फोर्थ ऑप्शन है a+b-3/2, ठीक है। अब तो हम ऐसा करते हैं कि भाई देखते हैं कि हर जगह देखो आप a+b लिखा है हर जगह, तो हम ट्राई करेंगे a+b लिखने के लिए। तो जब हम a+b लिखेंगे, a+b आएगा कितना, जरा देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, देखते जरा a+b कितना आएगा, a+b कितना आएगा, a+b आ जाएगा, ये लिखा और ये b वाला लिखा, ठीक है, a लिखा b लिखा। अब आप देखो log बेस 2 के बेस पे a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। तो आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि अगर उसको रिवर्स फॉर्म में लिखें तो ये 3 दे रखा है log बेस 2 पे, मतलब अगर रिवर्स कर दे तो आप समझ गए भाई बेस 1 वाला हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऐसा है। log ए बी रखा है तो 1/log बी लिख सकते हैं, ये ना, ये फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे, ये अपने समझ में आ गया कि ये लिख सकते हैं 2 के बेस, सॉरी ए पे जो 2 है, ए पे जो 2 है वो 3 आ जाएगा। वो ऐसा लिखने का रीजन ये है कि यहाँ पे सब जगह बेस ए लिख रखा है, तो इसलिए हमने बेस ए में ट्राई किया लिखने को। अब आप देखो ये log ए बी लिखा है, log a + log b लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें log ए बी करेंगे। अब ए बी जब किया तो ये आया, अब देखो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया अपने को, 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 10 आ जाएगा, पर थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये है कि आप देखो यहाँ पे -b दे रखा है, तो हम लोगों ने सीधे सीधे +b लिख दिया है। तो -b लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब +b लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, ये ऐड ना होने के बजाय डिवाइड होने लगेगा, लॉग ये m-log n लिखा है, तो अब जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 ÷ 5/3, सही ना, 30 ÷ 5/3।
और ये आ जाएगा log बेस ए, तो 35 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ये आपको यहाँ तक दिख गया होगा, 18 आ जाएगा। या फिर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 2 आ जाएगा, सही है। या फिर लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 2 log ए 3 प्लस log ए के बेस पे 2। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आप देखो, तो log बेस 2a दे रखा था कितना, 1/3, ये 1/3 दे रखा है, और ये आ जाएगा log बेस a3, और ये प्लस लगा रखा है, ये सब बराबर है 1 इसके, ठीक है। अब देखो आपको, शायद देखो तो आप समझ में आ जाए कि ये चीज अपने पूछ रखी है, वो यहाँ पे हमने ट्राई की है बनाने की, बन भी गई है। और, और फिर ए बी के टर्म्स में दे रखा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये लिख देंगे log बेस a3 2, और ये a प्लस बी -1/3, ठीक है, -1/3। और आप सोचो कि भाई अब कुछ नहीं करना इसमें, जो है सिर्फ अपने को तो ये जरा देखो कि आप, ये यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है log बेस a पे 3, और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो दे रखी है log बेस 3 है, उल्टा लिखिए। तो हम उल्टा लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, लिख देंगे कि 2 है, डिवाइड कर देंगे किसको, इससे डिवाइड कर देंगे पूरे से, और ये उधर चला जाएगा 1 अपॉन में, तो ये आ जाएगा log 3 है। तो ये जहाँ पे ऑप्शन अपने दिखेगा ऐसा, वो बेसिकली अपना ऐसा ऑप्शन अपने को असल में दिख नहीं रहा कहीं पे। तो आप थोड़ा देखो कहीं पे हमने मिस्टेक की है, तो मे भी मिस्टेक कहाँ पे की है, यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है, और थोड़ा इसको देखते हैं। तो log a3 लिखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो पूछ रखी है, यहाँ तो गड़बड़ नहीं हो सकता। अब a2 इसकी वैल्यू सही लिखी है क्या, हाँ, तो ये वैल्यू हम लोगों ने उल्टा लिख दी है, क्योंकि log 2 दे रखा है 2 के बेस पे, यहाँ पे a के बेस पे 2, बेसिकली यहाँ पे 1/3 सेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस 3 लिख देंगे जो, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, जो उसका मतलब रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। अब जब करेंगे तो माइनस में आप देखो, यहाँ पे -3 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा -3, और फिर अपने को ऑप्शन ये कौन सा दिख जाएगा, पहला वाला ऑप्शन दिख जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसमें फिर सही है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें अब आने वाले हैं क्वाड्रेटिक वाले, तो वो मैं नहीं करवा रहा क्वाड्रेटिक वाले। इसके अलावा मैं अब देख रहा हूँ एक क्वेश्चन छोड़ा है इस 20 इस स्लॉट में, इसके अलावा एक क्वेश्चन देख रहे हैं 21 स्लॉट का, जो बचा है वो क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद हम कर देखेंगे। अब वैल्यू बतानी है आपको लॉग, ये दे रखा है ऐसा कि ये log 3, और ये दे रखा है 4 प्लस log 4 दे रखा है, ब्रैकेट लगा है x-1, और ये कर्ली ब्रेस बंद है, ये ब्रैकेट -2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें x की 4x की वैल्यू आपको बतानी है, तो बेसिकली ये सब आपको ओपन करना पड़ेगा तभी बता पाओगे वैल्यू क्या है 4x की, तभी बता पाओगे। तो हम अगर सॉल्यूशन देखें तो इसका ऐसे बोल सकते हैं, काफी जल्दी करने का भी इसका तरीका, पर हम नॉर्मली देखते हैं मतलब कैसे करना चाहिए था। अभी चूंकि अपना बेस उतना अच्छा नहीं है, तो देखते हैं कैसे करना चाहिए था। अब आप देखो कि भाई ये जो 2 है -2 उधर ले जाएंगे, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और ये 2 टू पावर में बन जाएगा +2, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे, और सब सेम टू सेम ऐसा लिखा रह जाएगा, जो भी लिखा है यहाँ पे, जो भी लिखा है यहाँ पे इसको टी मान लो, लिखा रह जाएगा, और इक्वल टू बोल रखा है, ये उधर जाएगा -3 हो जाएगा, ये 4 लिखा है ऑटोमेटिकली ये -t=1 आ जाएगा, ठीक है। अब t1 बोल रखा है, अब देखो t जो है ये है, तब आप देखो 3 टू पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिया, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस, और जो यहाँ पे अंदर अब दे रखा है, अंदर क्या देखा कि log बेस 4 में दे रखा है x-1, ये दे रखा है, बस इतना ही बचा है। अब ये देखो इधर से कट जाएगा, +4 जाएगा उधर, -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1। अब आप देखो ये आ जाएगा फिर 1, सॉरी 4 टू द पावर -1 ऊपर बन जाएगा, और ये आ जाएगा x-1। अब देखो ढंग से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4 इक्वल टू x, ठीक है, सही ना, 4 ये लिख दिया, ये आ जाएगा 5/4, ये इक्वल टू x।
अब आपसे 4 टाइम्स एक्स की वैल्यू दे रखी है, जो कि आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी। 4 टाइम्स की वैल्यू कितनी, 5 आ जाएगी। चलो, ये क्वेश्चन है क्लैट 2021 का। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम इसी का देख सकते हैं, इसी स्लॉट का। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7th क्वेश्चन, जो कि इसी स्लॉट का। तो 5 माइनस दे रखा है, लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स। सो इसमें आगे दे रखा है कि +4 लॉग बेस 10 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दे रखा है लॉग बेस 10 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आप देखो इस क्वेश्चन में हर जगह प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी यूज होंगी, जो कि है लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी। तो अगर 5 हम यहाँ लिखा रहने दें तो यह आ जाएगा लॉग बेस 10 1 प्लस रूट ये लो, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 5 के साथ इसको लिख सकते हैं 4 लॉग 10 के बेस पे 1 माइनस एक्स। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी वाली। क्या आ जाएगा, लॉग ये और ए, ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर पावर 4 जो है हटा दें इसमें से, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 और 1 माइनस एक्स, ये लिखा है पावर हाफ और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 2 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा लॉग बेस 10। अब देखो ये जो चीज़ है वो लिख रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है, इंटू 1 प्लस एक्स, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर जब सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग बेस 10। अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ये माइनस हाफ, हाफ तो लिखा ही हुआ, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ये ऐसे आ जाएगा माइनस हाफ, और फिर माइनस में दे रखा है लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी वाला, तो लॉग ए बाई बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस हाफ, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स, और ये पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अभी लिखा है कि ए बाई ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई होता है ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, वो यहाँ पे लग रहा है। तो ये आ जाएगा लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 5/2। ठीक है, और ये इज इक्वल टू दे रखा है 5, जो कि एलएचएस में लिखा था, वही चलाते आ रहे हैं। अब देखो आपकी 5 जो है ये वाली पावर हम बाहर निकाल लेते हैं पूरी, तो पूरी बाहर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, लॉग बेस 10 1 माइनस 6 बचेगा, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बेसिकली माइनस 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये दे रखा है। अब देखो आपके 10 को अगर हम हटाएं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6। 10 टू द पावर -2 क्या होता है, 1 बाई 100, और ये आ जाएगा 1 माइनस 6। अब x अगर के लिए सॉल्व करें तो ये आ जाएगा इधर सब्सट्रैक्ट होके, तो 1 माइनस 1 बाई 100, ये आ जाएगा 99/100। तो अपने को देखो वैल्यू पूछ रखी है कि 100x की, क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रखी है 100x की। अब हाई वैल्यू पूछ रखी है वैल्यू ऑफ 100x, तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 99। तो ये अपना आंसर है। सो हमने 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 2021 में एक क्वेश्चन छोड़ा, 2022 में 2020 में एक क्वेश्चन छोड़ा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था, वो हम जब क्वाड्रेटिक कर लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यही तक था। सो कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। अब 2022 बचा है, 3 बचा है, 24 बचा है, फिर 5 बचा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and like and subscribe our channel.